गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू इन्फेंट जे स्कूल। You have already discussed exercise 4D in the mathematics, and today we are going to discuss properties of addition because uh, because without the properties you can't understand what going on in the mathematics. So student, let's see what is that. Student, here are the some properties in your book, that is addition 0, addition 1, order in addition, group and in addition. Okay student. So student, with the help of properties of addition, we will solve the exercise 4D, 4E, 4F, etc. Okay student. So what is addition 0? So addition 0, if we listen carefully, if we add 0 to any number, we get the sum as the number itself. Okay, example, you can take an example as 1 plus 0. So what will you get? 1. ओके स्टूडेंट, अगर आप किसी भी नंबर्स में अगर 0 ऐड करोगे तो आप वापस वही नंबर पाओगे. ओके, सेम एज यू कैन टेक 2 प्लस 0. कितना होगा इसका? 2 ही तो होगा. ओके, इज दैट क्लियर? इफ यू ऐड if you add 2 3 plus 0, so the answer is 23. Okay student, so so conclusion is that if you add to 0 any number, you get the sum as the number itself. Okay student, हम आपको एग्जांपल बता चुके हैं. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है एडिंग 1. ओके, सो व्हाट इज एडिंग 1? Okay student, let's see. So student, this is very simple. Let's take an example. Okay student, see, 1 2 3 plus 1. Okay, so if we add 1 to any number, we get the next number as the sum. Okay, so what will 1 2 4. Okay, यही हो जाएगा ना. So this is the properties order in addition. Okay student, you can also take another example. 4 5 6 plus 1. ओके, सो क्या हो जाएगा इसका? 4 5 7. ओके स्टूडेंट, ये जो 1 है ये यहीं तो जुड़ेगा, यहीं पर ऐड होगा ना, तो कितना हो जाएगा? 4 5 7. ओके, इज दैट क्लियर? नाउ कम फ्रॉम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ग्रुप इन एडिशन. ओके, सी, this is properties group and addition. So let's take another example. Students, see the example. You have any number of group. Okay student, let's 2 3 1. Okay, plus 1 equal to 1 plus 2 3 1. सो उसका रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों? सेम होगा कि नहीं? अगर आप इसको ऐड करोगे तो भी रिजल्ट वही आएगा, और इसको ऐड करोगे तो भी रिजल्ट वही आएगा. ओके ओके, so a change in the grouping of addends does not change the sum or sum. For example, take as example this. Okay student, ये है exercise 4D. You are already discuss. Student, now come from next exercise. उससे पहले स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं. ये देखिए आप, इससे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है. सी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर ए, 5 7 8 9 0 प्लस 0. तो व्हाट विल बी? 5 7 8 9 0. यही होगा ना. किसी भी चीज में अगर हम लोग जीरो जोड़ते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है? वो नंबर ही आता है जिसमें जो जीरो जोड़ रहे हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ कम फ्रॉम नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, एडिंग 10 100 and 1000. ओके, सो एडिंग 10 टू अ नंबर. स्टूडेंट, अगर हम लोग
अगर हम लोग किसी भी नंबर में 10 ऐड करेंगे तो क्या होगा? ओके, what happen when we adding 10 in any number? Okay student, so see, we can take example. When we add 10 to a number, the digit in the tens place increase by 1. Okay, you can take example 6 7 1 2 6 plus 10. Okay student, so ये 10 है ना, ये क्या हुआ वंस, ये हो गया टेंस, हो गया कि नहीं टेंस? सो 6 7 1, ये टेंस में 10, ये 10 है 2, इसमें टेंस जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा 6। ओ स्टूडेंट, ओके ओके स्टूडेंट, कैन यू अंडरस्टैंड और what going on in the question? Student, when we add 10 to a number, the digit in the tens place increase by 1. Okay, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ अगर हम लोग 10 जोड़ रहे हैं किसी भी नंबर्स में तो उसका जो टेंस होता है वंस टेंस, उस पर इंक्रीज करना है एक नंबर बस, इंक्रीज बाई 1, 1 प्लेस इंक्रीज करना है उसका। जैसे कि 3 सी 3 2 1 प्लस 10 है ना, तो ये क्या हुआ 1 से हुआ टेंस। ओके, तो दिस इज टेंस है ना, तो इसका जो नंबर है वो इंक्रीज 1 करना है अकेला, तो ये इसको इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना, तो 3 3 5। ओके, जी होगा, वेरी सिंपल। सो नाउ कम फ्रॉम सेम पार्ट, एडिंग 100 to a number. Okay, next property, adding 100 to a number. So when we add 100 to a number, the digit in the hundreds place increases by 1. Okay, पहले क्या हो रहा था? टेंस पर नंबर 1 इंक्रीज हो रहा था, प्लेस 1 इंक्रीज हो रहा था। अब 100 है ना, तो 100 पर नंबर प्लेस 1 इंक्रीज होगा। सी we take an example 7 8 3 5, ओके, प्लस 100। ओके, सो ये 100 है। ओके, बंस टेंस दैट इज 100। ओके, सो द वैल्यू इज इंक्रीज, द प्लेस वैल्यू 1। ओके, सो 7, ये वाली जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी बाई 1। ओके, तो 8 है, कितना 1 इंक्रीज होगी, कितना होगा 9, ये 5। ओके, so that will be the number. Okay student, you can take another example 1 2 3 4, okay, 4 plus 100। okay, so this is 100 and ones tens 100। okay जी, this is 100। okay, so इसमें क्या होगा कि जो प्लेस है 100 का वो इंक्रीज हो जाएगा बाई 1, बिकॉज दिस इज 100, so the place value of 100 increase by 1। okay, so 1 2 increase, 2 की जगह एक इंक्रीज हुआ, कितना होगा स्टूडेंट? 3 3 4, that will be the number। okay student, are you understanding? This is very simple student। if you have any problem, any query regarding to this exercise, then contact me। my name is Pratham Lakshkar and my number in the WhatsApp group। okay student, now come from adding 1000 to a number, same as 2 3 4 5 plus 1000। So when we add 1000 to a number, okay student, the digit in the thousand place increase by 1। okay, जो 1000 वाला प्लेस है उसका इंक्रीज हो जाएगा प्लेस 1 की जगह, जैसे कि 1 2 3 4 प्लस 1000, so that is 1000। so 1 tens 100,000। ओके, 1000 है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी बाई 1। सो 2 2 3 4। ओके स्टूडेंट, दैट विल बी द नंबर। ओके स्टूडेंट, अब आप इससे कर सकते हैं। अब दैट इज द एक्सरसाइज 4E, दैट इज एक्सरसाइज 4E।
अब ये आप देखिए, ये जो है फाइंड दी सम, ये 63119 plus 100. Okay, so that is 100, and 1 tens, that is 100. Okay student, so in the place value increase by 1. Okay, that is 100, so the place increase by 1. तो 1 की जगह कितना हो जाएगा, एक इंक्रीज होगा तो इसका 2, 63219. Okay student, same as you can do another question and the sums. Okay, see, this is 100, this is 10, ये 10 प्लेस पर एक इंक्रीज होगा, ये 1000 प्लेस पर इंक्रीज होगा. ओके स्टूडेंट, सी इसे देखिए, ये जो 100 ये 10 है, 10 प्लेस पर, यानी कि 10 प्लेस पर यहाँ पर होगा इंक्रीज. ये 1000 प्लेस पर इंक्रीज होगा, ये 100 प्लेस पर इंक्रीज होगा, ये 10 प्लेस पर होगा. ओके, चलिए मैं एक कर देता हूँ, आप लोग कर लेना फिर. इसे ये बी करेंगे हम लोग, 65410 plus 10. Okay, so this is tens and ones, that is tens. Okay, ये tens है ये. तो इस जब ये जो tens है, यही तो इंक्रीज होगा, एक इसी पे तो इंक्रीज होगा, यही तो प्लेस वैल्यू है, तो यही इंक्रीज होगा बिकॉज दिस इज टेंस. जब ये टेंस है तो यही जो टेंस वैल्यू है यहाँ की, यही इंक्रीज होगा. तो कितना हो जाएगा, 654 की जगह एक इंक्रीज होगा 20. ओके स्टूडेंट, that will be the answer. Okay student, and after that, now come from exercise 4f. Okay student, so in the exercise 4f we can add orally sum. See, if you have 70,000 plus 20,000. Okay student, so what can you do? So 0 0 0 0. Okay, 7 to 9, 90,000. You can add orally, just like if you have, see, if you have 7,000 plus 3,000. Okay, same. See, 1 2 3, 3 0 here, and 1 2 3, 3 0 there. Okay, and 7 plus 3, 10. तो इसको आप 10 लिख सकते हैं, और 3 जीरो जो हैं वो सेम लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, और दूसरा क्या हो सकता है कि इफ़ यू हैव 60,000 6,000 plus 1,000. Okay, so see, here is 30 and here is 30. Okay, जब दोनों तरफ 3 जीरो हो, मतलब सेम हो, तो उस समय हम लोग जो नंबर से उसे ही ऐड करते हैं, क्योंकि जीरो को जीरो ऐड करोगे तो जीरो आएगा ना. तो इसे ऐड करिए, 6 plus 1, व्हाट इज 7. तो 7,000, 3 जीरो है, 3 जीरो को 3 जीरो में ऐड करोगे 3 जीरो ही आएंगे, तो 7,000 हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, सो आप एक्सरसाइज 4 करें, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन देंगे, आंसर देंगे. नाउ कम फ्रॉम एक्सरसाइज 4G, fill in the blanks. Okay, this is very and very simple. See, 3 plus 4 will be 7, 30 plus 40 will be 70. Okay student, you can solve this. 300 plus 400, what will 700. Okay student, and finding the missing digit. Okay स्टूडेंट, यहीं तक ठीक है, आप 4G तक करिए, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन देंगे. ओके स्टूडेंट, सो आई एम एंडिंग दिस नोट्स. टेक केयर, बाय.